channel. Please do welcome onto my channel Kridha Legal Style. It's me, Advocate Anshu Mahendra. I'm basically indulged into the sector of GST filing, consultation and training program. Honestly speaking, since working with GST for a longer period of time, I realized that in practical and technical both aspects, GST plays a very crucial role in economy. So in the present time, it is very formulative and important for each and every one of us to have information about it. So in such regards, Kridha Legal Star has introduced its GST Beginners Guide. Honestly speaking, this guide is gonna be very productive for all those who are interested in the learning and training program of GST. Well, मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये GST क्या है. ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. मतलब इंडियन गवर्नमेंट हर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगने वाले टैक्स को GST कहती है. फाइन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर आज की कॉन्कैटेनेशन हमारी इस टॉपिक पे रिलेट नहीं करती कि हम GST के बारे में जान रहे हैं. आज का टॉपिक है टैक्सेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टैक्सेशन. Taxation is the most ever vital component for the growth and development of any nations. Tax collection is the practice of the government whereby it collects the money from its own citizen and utilize it to finance the public goods and services like infrastructure हो गया आपका, sanitation है, transportation है या other amenities. As economists says, taxation is non-penal. Yet, it is the biggest transfer of resources from private to public sector. आगे अगर हम बात करें तो taxation जो है ना, it is levied by three major bodies: central government, state government and other local authorities. Fine. Once more, taxation in India is levied by central government, state government and other local authorities. अब बात करते हैं कि हम टैक्स रेट को कैलकुलेट कैसे करें. तो अमाउंट विच इज बीइंग पेड टू बी टैक्स्ड को अगर आप डिवाइड कर देते हो टोटल मनी अर्न, व्हाट यू गोना गेट इज द टैक्स रेट. फाइन, शैल आई रिपीट? द टैक्स रेट इज इक्वल्स टू द अमाउंट विच इज पेड टू बी टैक्स्ड अपॉन द टोटल मनी अर्न. Now, if we talk about the further classification of taxation, there is two broader classification: direct tax and indirect tax. Talking about direct tax, क्या होता है? सभी जानते हैं direct tax क्या है. The taxes which is being directly paid to the government is called direct tax. जहाँ पे initial burden and final burden falls on the same person itself. जैसे कि income tax हो गया आपका, wealth tax हो गया, corporate tax है, etc. Now, if we just talk about what is an indirect tax. Indirect tax क्या है? Tax is imposed on someone, but it is paid by someone else. ठीक है? Imposition किसी पे and burden to pay the taxes on someone else. मतलब initial and final burden दो अलग अलग लोगों पे आता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? GST एंड कस्टम, जिसके बारे में हम आगे के सेशन में बात करेंगे. Further moving towards the classifications. The classifications on taxation is based upon two respective fields, जैसे कि progressive taxation and regressive. Progressive क्या होता है? The word itself means if the income of an individual grows up, if an income of an individual grows up, rate to pay the tax also grows up. मान लीजिए किसी इंडिविजुअल की इनकम कैसी है? 2.5 लाख है तो उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं. 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5%, 5 से 10 लाख पड़ती है, 5 लाख से 7.5 लाख पड़ती है तो 10%, और 7.5 से 10 लाख के बीच की 15%. If we talk about the regressive taxation, if income of an individual rises up या stable रहती है, tax rate उतना ही रहता है. Fine. This is we talk about the regressive taxation. वैसे भी अगर किसी सरकार के बारे में बात करी जाए तो वो हमेशा प्रोग्रेसिव रेट को लेके आगे बढ़ता है, रिग्रेसिव को नहीं. क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स. तो एक स्पेसिफिक फीचर होता है
तो स्पेसिफिक टैक्स लगेगा। एक होता है एड वॉलोरम टैक्स, ठीक है। तो अगर टैक्सेस लगाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑफ अ कमोडिटी, जैसे कि उसकी लेंथ हो गई, वेट हो गया, हाइट हो गया, ठीक है, तो दैट इज टू बी कॉल्ड अ स्पेसिफिक टैक्स। अगर एड वॉलोरम टैक्स की बात करें तो ये टोटल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी या उसकी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पे लगाया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स हर कंट्री में कॉर्पोरेट होता है, तो ये जो टैक्स होता है बेसिकली फॉरेन कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज पे लगाया जाता है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक कंपनीज कौन सी है, फॉरेन कंपनीज कौन सी है। डोमेस्टिक कंपनीज वो जो कि होली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड विद इन इंडिया इज कॉल्ड डोमेस्टिक कंपनीज। फॉरेन कंपनीज कौन सी होती हैं, ऐसी कंपनीज जो होली ओन्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड आउटसाइड इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है विद लर्निंग विद द टैक्स स्ट्रक्चर, दैट इज सेस एंड सरचार्ज। सेस जो होता है इट इज टेम्परेरी लेवी विच मीन्स इट इज बीइंग इम्पोज्ड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपका क्लीन एनर्जी सेस हो गया या कृषि एनर्जी सेस हो गया। नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट सरचार्ज, सरचार्ज क्या है? Tax on tax is imposed on the income about the certain level with a view to make that structure, tax structure, more progressive and reducing the inequalities. मतलब अगर टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत प्रोग्रेसिव बनाते हो, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गई, तो टैक्स ऑन टैक्स आपका लगता है 15%। So this was all it about the tax structure and the initial session of GST. आगे के सेशंस में हम आपसे बात करेंगे जीएसटी, दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेके, आगे इसके अमेंडमेंट्स क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे वर्क ऑन करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको कृधा लीगल स्टार प्रोडक्टिव लगता है, इफ यू फील कन्वीनियंट, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। नो डाउट आपको बहुत ही प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। टिल देन सी यू, थैंक यू सो मच।